Good afternoon, Krishna. Hello, Krishna. Hi. You can unmute your mic if you want. Oh, okay. Okay. Krishna, I heard that you are going to have your pre-boards and in that you will have your science examinations. So, why don't we just finish this heredity and evolution and we will try to cover, if you have time, then we will try to cover our environment, this chapter also. This thing will be okay with you. Evolution is deleted. Only heredity is there. No, beta. Wait a second. Everything is there. Let me again share my screen to you, okay? Now it's okay. So it is okay. Both heredity and evolution are there, Krishna. See? Now you are able to hear me? Okay. So, I'm saying that heredity and evolution, this complete topic is there. You are able to watch this? Okay, very good. And I was saying that I got to know that you are going to have your keyboards. So if you have time today, then should I cover the next chapter, our environment also, so that you can do well in your exam? Very good. So normally we have our class 3 to 4. So will it be fine for you that we extend this class for some time also about 4:30, or if this chapter is, I don't know, till 5, 4:45. So you are okay with this? Okay, very good. So we will try to cover the key points which you will, which most of the questions come. Okay, and in this PPT, I have tried to write some text also so that you don't have any scarcity of notes. Okay, I have put some text also for you, Bacha. Okay, so today we will try to cover the last part left of heredity and evolution, and we will try to cover our environment also. Without wasting our time, let's start the chapter. Okay, now this screen is visible to you.
This is a screen on which I am going to teach you. Okay, very good. So let's do the quick revision of the last class which we have done. Okay, so that you don't forget anything. Till now, what you have seen that the frequency of inherited trait change over generation. क्यों चेंज हो रही थी जनरेशन बाय जनरेशन इनहेरिटेड ट्रेट्स की फ्रीक्वेंसी? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से या कुछ जीन वेरिएशन हो रहा था, जेनेटिक शिफ्ट, इस टाइप की चीजें हो रही थी, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा था, ये सब हो रहा था. तो लेट्स क्विकली कवर दोस पॉइंट्स. So the frequency of inherited trait change over generation. So since genes control the trait, the frequency of certain genes means if the genes are controlling the traits, so the frequency of certain genes in a population change over generation. इसका क्या मीनिंग हो रहा है कि अगर कोई ट्रेट चेंज हो रहा है मीन्स अगर जीन्स उस ट्रेट को कवर कर रही हैं, दैट मीन्स कि जीन्स भी चेंज हो रही होंगी, जीन्स की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही होगी, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे होंगे. सो दिस होल इज द आइडिया अबाउट इवोल्यूशन. ओके, तो अभी तक हमने नेचुरल सिलेक्शन देखा कि क्रोस ने कैसे नेचुरल सिलेक्शन किया, है ना. क्रोस के थ्रू देखा था, जो बीटल वाला हमने एग्जाम्पल किया था लास्ट क्लास में. देन और हमने क्या देखा था कि एलिफेंट जो थे वो किसका कॉज था, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कॉजल ऑर्गेनिज्म बने थे. ओके, एंड थर्ड सिचुएशन जो हमने बीटल वाली देखी थी उसमें क्या देखा था कि फूड स्कैर्सिटी हो गई थी ना. तो फूड स्कैर्सिटी की वजह से the growth of the beetle was depleted, but when in the normal condition, when they got their food, the growth was again flourished. So this, the third case was not bringing any drift or selection type of thing. So next I have told you about that acquired traits and inherited traits. ये भी हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, एक्वायर्ड ट्रेट और इनहेरिटेड ट्रेट. सो उसमें क्या बताया गया था आपको कि एक्वायर्ड ट्रेट्स आर दोस कैरेक्टरिस्टिक दैट डेवलप इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सम स्पेसिफिक कंडीशन, है ना. मीन्स स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से क्या हो जा रहा था, चेंज इन दियर जर्म लाइन. ओके, नहीं, आई एम सो सॉरी कि acquired characteristics की वजह से the change was not happening in the germ line, but that developed in an organism due to some condition, and this change was not in their germ line. In fact, the inherited traits, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो inherited traits में थे, in that the change was occurring in the germ line. और जो जर्म लाइन में चेंज आ रहा था, बिकॉज ऑफ दैट these traits were passing on from generation to generation. ओके, देन हमने नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर किया था लास्ट क्लास में, स्पेसिएशन का कवर किया था ना. स्पेसिएशन में क्या देखा था, we took the example of beetle.
some beetle goes from one population to other population. तो जो reproduction हो जा रहा था दो population के बीच में, that was the reason for speciation. Means the case where a beetle was reproducing with a local population, है ना? So this will result in the genes of the migrant beetle entering into a new population. So new species. और जहां पे रिवर आ जा रही थी वहां पे कोई स्पेसिएशन नहीं हो रहा था. अच्छा, लास्ट क्लास में I have also told you about evolution and its character classification. In that, I have made a figure of homologous organs and analogous organs. Today I have brought that figures. In fact, I have pasted that figure for you that you can see a proper image of those homologous organs and analogous organs. So, homologous organs में क्या था? We have seen that the basic structure of limbs of the limbs is similar, though it has been modified to perform different functions in various vertebrates. Means उनकी एक common ancestry रही होगी. So a homologous characteristic helps us to identify an evolutionary relationship between apparently different species. Means they must have got common ancestors. And what about the analogous organs? In this we have taken the example of wing of a bat and wing of a bird. And what I have taught you was that, so the wings of birds and bats are their arms. जो arms होंगे bird के या bat के, वो उनके wings ही तो होंगे. So they have different comical combination. So they are analogous to each other. क्योंकि similar दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि उनकी ancestry भी common हो, उनके similar chemical combinations हो. तो analogy क्या है? Is a functional similarity of structure that is based on mere similarity of use. सिर्फ यहाँ पे use common है, ancestry common नहीं है, तब ये analogy हो गई. या ये organs जो दिखाए जा रहे हैं वो analogous organs हो गए. ये तो हमारा revision हो गया. Now today's class, fossils. I have tried to write some lines for you also, ताकि आपको notes या कुछ ऐसा अगर एग्जाम पे आता है तो आपको ये चीजें भी मिल जाएं, ताकि नोट्स की भी कोई प्रॉब्लम ना आए आपको. ठीक है? वैसे तो आप सब नोट कर रहे होगे ना जब मैं पढ़ाती हूँ. तो वाटर फॉसिल्स क्या होते हैं? You have any idea? Krishna, am I audible to you? You are getting me? Okay, you are typing. Okay, very good. So I am telling you about fossils. Okay, don't mind. ठीक है. तो fossils क्या हुए बच्चा? ये all these analogy या homology जो भी आ रही है हमारे पास, वो हम खाली अभी जो present organisms है ना उनके ऊपर नहीं पढ़ी जा सकती, क्योंकि हमें उनके लिए तो ancestors भी तो देखने पड़ेंगे अपने. तो so all this analogy, homology we can't study on just on the living species alone. So we have to study one species on those species that are no more alive. तो जो alive नहीं है, अब वो हमें कैसे मिल सकते हैं? वो हमें fossil form में मिल सकते हैं. जैसे आपने डायनासोर तो बहुत सुना होगा, डायनासोर का fossils होते हैं. Yes, तो बेटा बोन भी तो प्रिजर्व नहीं रहती है, वो जो प्रिजर्व फॉर्म में होंगी तो ही वो तो फॉसिल कहलाएंगे ना. तो हम क्या हुआ कि फॉसिल्स प्लांट्स के रिमेन हो गए, एनिमल के हो गए, इंसेक्ट के, बैक्टीरिया के, फंजाई के और किसी सिंगल सेल लिविंग बीइंग के.
means you will write this line. Okay, write quickly. Fossils are the remain of plants, animals, insects, bacteria, fungi, 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 and other single celled living organism या living thing, जिससे आप feasible हो लिख लो, that have been replaced by rocky material or impression of organisms preserved in rock. तो फॉसिल्स क्या हुए, जो कि प्लांट्स के, एनिमल्स जो चले गए, या उनकी बोन्स जैसे अभी आपने बोला वो हो गई, या बैक्टीरिया हो गया, या टोटल प्लांट हो गया, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा हो गया जो कि सिंगल सेल हो गया, वो सब जो भी कभी रॉक में दब गए, या कभी जो हमारा एक प्लांट मटेरियल होता है अंबर, उसमें प्रिजर्व हो गए। तो इस तरह के बहुत सारे रिमेन्स फॉसिल हमें मिलते रहते हैं। तो वो इंप्रेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है, जो रॉक में प्रिजर्व हो गए, दैट इज कॉल्ड एज फॉसिल। सो इन द एनसीईआरटी बुक फॉसिल्स के कुछ दिए हुए हैं, जैसे ये एक फॉसिल मिला है ट्री ट्रंक का, या ये एक फॉसिल मिला था इनवर्टिब्रेट्स जो होते थे, एमोनाइट फॉसिल उसे बोलते हैं। तो एमोनाइट का, दैट इज व्हाई यू विल आस्क, आपको कंफ्यूजन ना हो, दैट इज व्हाई आई राइट दिस लाइन कि एमोनाइट क्या थे। एमोनाइट बेसिकली 416 मिलियन अगो दे इवॉल्व। तो वो प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स होते थे, वो बाद में एक्सटिंक्ट भी हो गए। वो एनिमल्स जो थे बहुत एंशिएंट सीज में पाए जाते थे, और वो एक टाइम पे बहुत सक्सेसफुल एनिमल्स होते थे अर्थ पे। उनकी जो स्क्विड, जैसे अभी स्क्विड होता है, उस तरह से उनके कुछ आगे ऐसे टेंटाकल्स होते थे यूं करके, ये तो उससे वो प्रेडेटरी होते थे। तो उस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हुए उनके भी फॉसिल मिले। वो इनवर्टिब्रेट्स मतलब प्रॉपर वर्टिब्रल कॉलम, जो अभी जो ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल मैमल में होता है वैसा नहीं था। ठीक है, तो पुराने टाइप के तुम समझ लो कि मोलस्का टाइप के कुछ होते थे, तो वो एमोनाइट थे। मतलब यू विल राइट दीज लाइंस इफ यू वांट। फिर दूसरे जो फॉसिल्स मिले वो ट्रिबोलाइट फॉसिल्स है, ये दिखाए गए हैं। ये क्या हुआ, ये भी एक एक्सटिंक्ट फॉसिल ग्रुप है। आर्थ्रोपोड एक ग्रुप आएगा जब आप बड़े क्लास में आओगे, क्लास 11th में, देन यू विल लर्न अबाउट एनिमल सिस्टम क्लासिफिकेशन। उसमें एक ग्रुप आएगा एनिमल किंगडम में, आर्थ्रोपोडा। तो ये एक तरह के अर्लीस्ट आर्थ्रोपोड्स होते थे, एक कैटेगरी है जो उनकी क्या रिकॉग्नाइज की 3 लोब उनके सेगमेंटेड फॉर्म होते थे, इसलिए ट्रिबोलाइट्स कहलाए हैं, बिकॉज ऑफ द 3 लोब, 3 सेगमेंटेड फॉर्म। तो ये एक्सक्लूसिवली ये भी मरीन होते थे। मरीन मतलब सी वाटर। तो ये कब हुए, जो कैम्ब्रियन पीरियड आया, प्री कैम्ब्रियन, उसमें 542 मिलियन ईयर्स अगो। ये सब ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको प्रॉब्लम ना हो, समझ में आ जाए क्या है। तो ये ट्रिबोलाइट फॉसिल हो गए। अच्छा, फिश का फॉसिल मिल सकता है। और अभी लेटेस्ट में राजस्थान में से एक डायनासोर का स्कल मिला है, तो वो भी एक फॉसिल है। ओके, अच्छा कैसे बनते हैं फॉसिल्स? यूजुअली क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी या तो डिकम्पोज हो जाती है या फिनिश हो जाती है ना। लेकिन अब डिकम्पोजिशन वाली बात क्या हुई, डिकम्पोज किसी की बॉडी कौन करता है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो जो सैप्रोफिटिक हो, जो डेड एंड डिकेइंग के ऊपर ग्रो करते हो, उस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं। बट समटाइम व्हाट हैपन, every once in a while the body or at least some part of that body वो एनवायरमेंट में प्रिजर्व हो जाए। और वो ऐसे प्रिजर्व हो जाए, जैसे भी मैंने बताया कि इंसेक्ट जो है अंबर में रह जाए, या किसी रॉक के बीच में उसका मार्क मिल जाए,
तो वो डिकम्पोज ना होने पाए। तो इसीलिए तो हर चीज का फॉसिल नहीं मिला, क्योंकि सबकी बॉडीज तो डिकम्पोज होती चली गई, किसी किसी की तो खाली बॉडी रह पाई जो डिकम्पोज नहीं हुई और प्रिजर्व हो गई। तो इसलिए तो कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, नहीं तो इतने सारे डायनासोर्स गए, सबका फॉसिल नहीं मिल जाता। सिर्फ वो डायनासोर या वो स्पीशीज जो प्रिजर्व हो पाई, सिर्फ वी आर एबल टू गेट दोस फॉसिल ओनली। So all such preserved traces of living organisms are called fossils. अच्छा, इसमें कैसे दिया गया फिगर आपके लिए लाई हूं। इसमें क्या दिया हुआ है कि 100 मिलियन ईयर्स अगो, पहले की बात है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऑन द सी बेड डाई, कुछ की डेथ हो गई। इनवर्टिब्रेट्स जिनका प्रॉपर वर्टिब्रेट कॉलम ना हो, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह, तो वो क्या हो गए, सैंड में वो बरी हो गए। मतलब डेथ होने के बाद हॉट सैंड थी और सैंड में तुरंत डेथ हुई और वो कॉम्प्रेस हो गए, अक्यूमुलेट हो गए, सैंड स्टोन बन गया प्रेशर की वजह से, और भाई आप नाउ यू आर एबल टू गेट दैट फॉसिल। फिर उसके अलावा क्या हो सकता है, डायनासोर की डेथ हो गई और उनकी बॉडी भी मड में बर्ड बरीड हो गई, फिर उसके ऊपर रॉक बन गई और रॉक ने क्या करा, जो डायनासोर का था वो लिविंग फॉसिल हमें आज दे दिया। जब हम जितना ज्यादा डीप एंड डीप खुदाई करते जाते हैं, जो आपके ये आर्कियोलॉजी वाले लोग होते हैं, इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। उसका भी काम यही होता है कि पुरानी चीजों को खोद के निकालना। जैसे आपको हड़प्पा मोहनजोदाड़ो एंड ऑल दीज चीजें मिली, किसके थ्रू मिली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन भी मे भी पूछ लिया जाए आपके उसमें एग्जाम में, कभी कभी कुछ फुल फॉर्म से इस तरह से आ जाए तो। फिर क्या हुआ, हॉर्स लाइक क्रिएचर की भी हमें फॉसिल मिले हैं। उनकी डेथ कैसे हुई, मान लो जिस एरिया में डेथ हुई वहां के ऊपर रॉक आ गई, तो भाई लीजिए हॉर्स टाइप की ऑर्गेनिज्म की भी फॉसिल मिल जाएगी। अच्छा, अब वाटर का जैसे इरोजन हुआ, क्या होता है, उससे क्या हुआ, वाटर इरोजन बहुत ज्यादा क्यों होता है, इरोजन क्यों होता है, जब हम प्लांट्स काट देते हैं तो उस तरह से इरोजन हुआ, रॉक्स जो थी वो भी कुछ फ्लो कर गई एंड एक्सपोज था, और उसकी वजह से वो जो फॉसिल्स वहां दबे थे अब वो हमें नजर आ रहे हैं। तो अब हम उनसे ओल्डर एंड ओल्डर फॉसिल्स जितना हम स्कैवेंज करेंगे उतना मिलते जाते हैं। तो एक इसमें एक और आपको एग्जाम्पल दिया हुआ था डायनासोर का, कि डायनासोर फैमिली का दिया गया था, उनके फेदर्स दिखाए गए थे जो प्रिजर्व थे। और डायनासोर के फेदर्स के साथ साथ एक बात और कही गई थी कि जो डायनासोर थे ज्यादातर प्रेडेटरी थे, तो फेदर में बहुत ज्यादा उनके कुछ चेंज नहीं मिला। क्यों नहीं मिला बहुत ज्यादा चेंज, क्योंकि मे बी उनका फेदर जो है वो इतना यूज नहीं कर रहे होंगे, तो उतना ज्यादा इवॉल्व नहीं दिखा। अच्छा, एक और चीज होती है, ये टॉपिक है आपका इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। कैसे कैसे स्टेज बाय स्टेज इवोल्यूशन होता चला गया। तो इसी में देखा गया कि आज जो हमारे पास आईज हैं, ये सपोज करो ये एक सिंगल टेल्ड एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी ऐसी करके कुछ आईज थी, उसका नाम था प्लेनेरिया। क्या नाम था, वो एक फ्लैटवर्म होता है, फ्लैटवर्म जैसे सुना होगा ना, फ्लैटवर्म, अर्थवर्म, ये सब। तो प्लेनेरिया एक, प्लेनेरिया उसका बोटानिकल नेम है। और बोटानिकल नेम को बेटा जब भी हम लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं, ये आप जब 11th में जाओगे प्रॉपर तब आपको पता चलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म था, उसका नाम था प्लेनेरिया, ठीक है। उसकी होती थी बड़ी सिंपल सिंपल आंखें। तो जो आज हमारी आईज हैं, क्या वो एकदम से आ गई हैं, नहीं, स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन होता गया, जीन्स चेंज होती गई, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक शेप, जेनेटिकल मेकअप, ये सब चेंज हुआ, इवोल्यूशन होता चला गया। जैसे प्लेनेरिया की आंखों से हमारी आंखों तक बात पहुंची, इसी तरीके से एक वाइल्ड कैबेज होती है। वाइल्ड कैबेज में क्या है, ये जो था
ये सब जो दिखाया ये नेचुरल इवोल्यूशन था। ये जो हुआ डायनासोर का हुआ या प्लेनोरिया का हुआ, ये नेचुरल इवॉल्व हुए। अभी जो वाइल्ड कैबेज की बात करेंगे, ये कोई नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है। वाइल्ड कैबेज की बात की जाए तो ये कोई नेचुरल इवोल्यूशन नहीं है। तो इसमें क्या होगा, फार्मर के पास मान लीजिए वाइल्ड कैबेज थी, अब उसने जो उनकी फ्लावरिंग अरेस्ट करवा दी, तो भाई जाके ब्रोकोली बन गई, और उनकी फ्लावरिंग को मान लो, मतलब ये फ्लोरेट्स की स्टेज पे ही अरेस्ट हो गया, और कुछ सपोज उनको राउंड दे दिया गया तो कोलराबी टाइप की एक कैबेज बन गई। अगर उनकी लीव्स को बहुत ग्रोथ पास मिला दी गई तो कैबेज बन गया उस वाइल्ड कैबेज से। और अगर उनके चेंज ऑफ कलर करा दिए गए तो उनमें ऐसी जीन्स आ गई जिससे कि वो ग्रीन की बजाय अब वो रेड होने लगी, तब रेड कैबेज हो गई। इसी तरह से कॉलीफ्लावर डेवलप हुई, एक और वैरायटी है काले, वो डेवलप हुई। तो ये कैसे हुआ कि जो चेंज इन डीएनए होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, सो दीज आर द बेसिक इवेंट्स इन इवोल्यूशन। ठीक है, अभी तक आपको सब समझ में आया? वेरी गुड। वैसे तो मैं इतना क्विकली पढ़ा रही हूँ आपको ये वाला चैप्टर कि मुझे तो लग रहा है कि आपको जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा भाई। आपको फिर टाइम भी मिल जाएगा अपनी स्टडीज के लिए भी। आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो या कोई दूसरी बुक है? ओके, तो एनसीईआरटी वाली जो फिगर्स है ये एनसीईआरटी की बुक से लिए हैं मैंने। तो एनसीईआरटी वाली बुक नहीं है आपके पास? क्योंकि जो बोर्ड का आपके सीबीएसई का आता है क्वेश्चन पेपर, वो बनाते तो जो भी है वो एनसीईआरटी को बेस करके ही बनाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो अभी जो मैंने पढ़ाया उसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा लिख लो, क्योंकि इफ यू डोंट हैव इवोल्यूशन बाय स्टेजेस पे कुछ लिख लो, इफ यू डोंट हैव दिस टेक्स्ट बुक। ओके, मैं लिखती जाऊं या मैं लिख देती हूँ वो चीजें, यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। जो प्लेनेरिया, ये तो सब हो गया था पता। ये जो प्लेनेरिया वाला भी जो बता रही हूँ एग्जाम्पल, और ये वाइल्ड कैबेज वाला ये तुम लिख लो, मे भी क्वेश्चन में आ जाए तुम्हारे ना। Let me rub this area and I will write. Just a second. चलो इस पे लिख दे रही हूँ। मैं लिख दे आपको बता दे रही हूँ इवोल्यूशन बाय स्टेजेस का। हम नोट कर लो। I will write this whole paragraph for you.
ले आइए, स्लाइड चेंज कर दूं? कृष्णा, स्लाइड चेंज कर दूं क्या? और लिख लो थोड़ा सा, ये डायनासोर के बारे में भी लिख लो थोड़ा सा।
लिख लिया इतना? ओके ओके। Okay. So to say that different looking structures evolve from common ancestor. ये कर लो, स्लाइड चेंज करो। ये जो एग्जाम्पल था डायनासोर, बर्ड्स आई वाला, ये हमारे एंसेस्ट्रल एग्जाम्पल्स थे। अभी जो वाइल्ड कैबेज वाला आपको बता रही हूँ वो क्या है, एक रिसेंट एग्जाम्पल है। यहाँ पे करिए, लिखूं, वाइल्ड कैबेज का भी लिख दूं।
डन। लिख लिया तुमने? Okay. क्या हुआ बेटा, जैसे मैंने बताया, लिख के बोलो। Am I audible to you, Krishna? Okay. Okay. So, some farmers they want short distance between the leaves, है ना? तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, जो सिलेक्शन प्रोसेस किया, दो दिस सिलेक्शन प्रोसेस वाज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। उन्होंने लीव्स के बीच की डिस्टेंस घटाने के लिए क्या किया, जो जेनेटिक सिलेक्शन किया जीन्स का, वो ऐसी जीन्स का सिलेक्शन किया कैबिज डेवलप हो गई, है ना? फिर क्या हुआ, तो सम हैव वांटेड टू सेलेक्ट फॉर अरेस्टेड फ्लावर, जैसे मैंने ये ब्रोकोली का बताया, एंड किसी को सोलन चाहिए थे पार्ट्स, तो उन्होंने कोलराबी, ये कोलराबी है, दिस इज ये कोलराबी जो गोल वाली एक आती है, वैसी इन्होंने कैबेज से कोलराबी डेवलप कर ली। अच्छा, किसी किसी को सोलन चाहिए तो कोलराबी कर ली, फिर किसी को स्लाइटली लार्जर लीव्स पसंद थी, तो क्या किया उन्होंने, एक वेजिटेबल टाइप की स्पीशीज बना ली वाइल्ड कैबेज से, जिसे आप काले बोलते हो, KALE। फिर इन सब कहां से आई, एक सेम वाइल्ड कैबेज के एंसेस्ट्री से आई, तो ये चीज हो गई। फिर ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, ये यहाँ पे एक फिगर उन्होंने दी हुई थी एनसीईआरटी में, लैडर वर्सेस ट्री। इसमें क्या है, इसका जो सोल समझने का मीनिंग है वो ये है कि जब हम ह्यूमन बीइंग्स, हमारे अंदर इवोल्यूशन आता है तो कैसे आता है, ट्री फॉर्म में आता है, एक छोटी सी, कुछ उसकी सिमिलैरिटी हमारे अंदर, कुछ उसकी सिमिलैरिटी, इससे होते होते प्रॉपर एक जेनेटिक ट्री बन जाता है। और जबकि लैडर क्या चीज होती है, लैडर में क्या है कि स्टेप बाय स्टेप पूरा ही चेंज आ जाए, प्लांट से वो बीटल बन जाए, और बीटल से उठा के वो फिश बन जाए, और फिश से उठा के पूरा ह्यूमन बीइंग बन जाए, कुछ इस टाइप की चीज अगर हो जाए, पूरा चेंज, तब वो लैडर होगा। नहीं तो जो हम लोग इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं वो एक जेनेटिक ट्री में आएगा। चलो, ये कंप्लीट डन दिस चैप्टर। आपको समझ में आ गया ये चैप्टर? तो ये जो लैडर वाला एग्जाम्पल दिया गया था वो बेसिकली ह्यूमन एवोल्यूशन में आया था, और एक और चीज उसमें आई थी, एक जो ह्यूमन के स्पीशीज हैं, जो हम देखते हैं कि कोई ब्लैक कलर स्किन है, कोई फेयर कलर स्किन है, तो ये सब बेसिकली ये नहीं है कि कोई वो कहीं और से इवॉल्व होके आ रहे हैं और वो कहीं और से, इस सब का रीजन सिर्फ एक ही है कि जो हमारा ह्यूमन के एंसेस्टर है जो था प्रॉपर, वो अफ्रीका से ही मिले थे, लेकिन फूड, बिजनेस,
या और भी जो लाइवलीहुड की उनकी जरूरतें थी, तो उससे वो अलग अलग एरिया में मूव करते गए। कभी अफ्रीका से वो फिलीपींस की तरफ गए होंगे, कभी फिलीपींस से वो यूएस गए होंगे, कभी यूएस से यूरोप गए होंगे। तो जैसे जैसे वो गए, ड्यू टू बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहां वो बसते गए, उनकी जीन्स में थोड़े थोड़े हल्के फुल्के स्किन की जो मिलानिन कंपोजिशन है उसमें चेंज आया, तो उससे वो आए। लेकिन है उनका ओरिजिन एक होमोसेपियन से ही, जो कि अफ्रीका में। अब हम लोग फ्रेश चैप्टर कर लेते हैं, अवर एनवायरमेंट। बहुत इजी है। आपने ये पहले चैप्टर पढ़ा है कभी? स्कूल में तो पढ़ा होगा, खुद से पढ़ा है? कुछ आइडिया है? बहुत छोटा सा 4-5 पेज का चैप्टर है, बट अच्छा है। आगे हमेशा ये इकोसिस्टम में जो है, ये जितना भी बड़े होते चले जाओ, एक पूरी ब्रांच बन जाती है इकोलॉजी। पढ़ा है? वेरी गुड। इसका सिंपल सी एक चीज है, देखो, इकोसिस्टम या इकोलॉजी की बात करें हम, तो सिंपल से तुम एक चीज समझ लो कि दो कंपोनेंट से बन के आती है ये पूरा इकोसिस्टम। वो दो कंपोनेंट हम ऐसे लिख देते हैं, बायोटिक कंपोनेंट, और इधर लिख देते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? बायो वर्ड तुम समझ ही रही हो, जो लिविंग बीइंग्स हो गए है ना। ए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हो गए? जो नॉन लिविंग चीजों की हम बात करें, तो यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए लिखा भी है ये लाइंस। क्या कहती है ये? कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जिन्हें आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सको, या ह्यूमन बीइंग्स हो गए, है ना। ये सब ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने सराउंडिंग से इंटरैक्ट करते हैं। कैसे करते हैं भाई? हम कोई फूड खाते हैं, वो तो लिविंग बीइंग है, लेकिन वो फूड जो है वो किसी सॉइल पे तो ग्रो करता होगा। वो सॉइल तो बायोटिक नहीं है, वो तो एबायोटिक है ना। तो एबायोटिक फैक्टर्स की ही बात कर लो पहले। एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? टेम्परेचर होना, टेम्परेचर ठंडी है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर रेनफॉल हो रही है, तो कहीं रेनफॉल नहीं हो रही है तो वहां एरिड रीजन है, मतलब सूखा पड़ रहा है। कहीं पे विंड फास्ट चल रही है, कहीं पे लो चल रही है, कहीं की सॉइल एल्कलाइन है ना, नमक है, तो कहीं के सॉइल का पीएच कम है तो एसिडिटी है ना। कहीं के सॉइल में बड़े ज्यादा मिनरल्स मिल रहे हैं, मतलब जैसे कहते हैं खाद्य पदार्थ ज्यादा मिलना, उस टाइप की चीज फुल्ली मिनरलाइज्ड है। कहीं पर बिल्कुल स्कैर्सिटी है। तो ये सब चीजें, इकोसिस्टम इसी से बना। कैसे बना? अब भाई सिंपल सी एक छोटी सी बात करो, कोई भी, हमें प्यास लगती है तो हम पानी की तरफ बढ़ते हैं। हम जो हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, उन्हें प्यास लगी होगी तो उन्होंने अपने लिए रिवर ढूंढी होगी पानी पीने के लिए। इसी तरह से टाइगर ने भी ढूंढी होगी। इसी तरह से जिनको जिनको पानी की जरूरत होगी उन्होंने कोई पानी का सोर्स ढूंढा होगा। ये क्या हो गया? एक बायोटिक फैक्टर था, वो ह्यूमन बीइंग या वो एनिमल, और वो पानी क्या था? उसका एक एबायोटिक फैक्टर था। तो ये सारी चीजें जो आपस में ये सब इंटर रिलेट करती हैं, हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, और ये चीज मिलाकर हमारे इकोसिस्टम को बनाती है। तो लेट मी क्विकली रीड दिस लाइंस फॉर यू। So all organisms such as plant, animal, microorganism and human being as well as the physical surrounding interact with each other, and this maintain a balance in nature. So all the interacting organism in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि an ecosystem consists of biotic components, वो क्या हो सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंड abiotic components, वो क्या है? फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया आपको? यस और नो? यस, वेरी गुड। अच्छा,
अब एक नेक्स्ट चीज देखिए, हर स्टेप जो है वो एक फूड चेन है, एक फूड चेन बनेगी हर स्टेप पे। कैसे बनेगी, ये तो आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा। सपोज जो ग्रीन प्लांट, अच्छा ये चीज तो तुमने लास्ट क्लास में भी, लास्ट चैप्टर्स में जूलॉजी वाली मैम ने ये चीज पढ़ाई होगी कि कैसे हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हुए, जो ग्रीन लीव्स हुई, जिनमें भी फोटोसिंथेसिस हो रही है, जो क्लोरोफिल प्रोड्यूसिंग है, या कुछ माइन्यूट से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया वगैरह, वो भी जिनमें क्लोरोफिल है और जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उन्हें आपने प्रोड्यूसर बोला था, है ना? क्या बोला था? प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर बोला था। प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना, यस। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि वो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, दूसरी केस, वेरी गुड, दूसरी चीज, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हम क्या हुए? जो प्रोड्यूसर नहीं है तो वो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर, यस वेरी गुड, वो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। सो नाउ यू नो दिस, दैट्स वेरी गुड थिंग। तो हर स्टेप या हर लेवल ऑफ फूड चेन एक ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। जैसे आपके ग्रीन प्लांट्स या इस तरह की चीजें जो हो गई, वो प्रोड्यूसर हो गई, है ना? फिर जो उनके ऊपर जो ग्रेजिंग, कुछ ऐसी काव आ जाए या कुछ आ जाए जो हर्बीवोर्स होते हैं, वो उसके प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। अब थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा? कुछ बड़ी फिशेस जो छोटी फिशेस को खा जाती हैं नॉर्मली, कुछ नॉर्मल बर्ड्स या क्रोज, ये सब जो इंसेक्ट को खा ले रहे हैं। यहाँ पर तो ग्रीन प्लांट्स हर्बीवोर्स में इस तरह की चीजें आ जाएंगी। टर्शियरी कंज्यूमर कौन होंगे? या जो हमारी फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होगी, या जो हमारी टॉप ट्रॉपिक लेवल होगी, वो कौन हो सकते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होंगे, जैसे कि लॉयन हो गया, इस तरह की चीजें हो गई। या क्या हो जाएगी? वल्चर हो जाएगा, क्योंकि वो बर्ड्स में हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे है। इस तरह की चीजें अभी तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये देखो, ये प्लांट है, इसको एक ग्रास हॉपर खा ले रहा है, फिर ग्रास हॉपर को एक फ्रॉग खा ले रहा है, और फिर फ्रॉग को एक स्नेक खा लेगा, और स्नेक को जो हाईएस्ट लेवल वाला है, यानी कि वल्चर है, वो खा लेगा। इधर भी देखो, एक ग्रीन प्लांट है, उसको जो सी प्लांट दिखाया जा रहा है यहाँ पे, ये सी वाला दिखा रहे हैं, ये ये सी प्लांट है, उसको क्या है, कुछ क्रैब या मॉलस्क इस टाइप की चीज खा लेंगी। तो ये एक क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए यहाँ पे ना। फिर उसके बाद ये इन्हें फिशेस खा लेंगी, फिश के ऊपर भी, फिश के ऊपर क्रेन बैठी हुई है, और क्रेन के ऊपर ईगल बैठी हुई है, या कि आपका वल्चर बैठा हुआ है। ठीक, इधर देखो, इधर यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज थे, ट्रीज के ऊपर फीड या ग्रासेस, ग्रास से मान लो स्टार्ट कर लो। अच्छा, ग्रास से नहीं स्टार्ट करना है तो ट्रीज से ही करो। ट्रीज हो गए, ट्रीज को खाने के लिए डियर आ गए, डियर को खाने के लिए टिगर आ गया आपका। तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रही बात। और यहाँ पर भी जैसे मैंने काऊ डाली थी, काऊ को खाने के लिए, और भी सारी चीजें डाली, तो वाइल्ड एनिमल्स आ गए, काऊ के ऊपर टाइगर आ गया, डियर दिया गया है यहाँ पे, है ना? समझ में आई? फूड चेन समझ में आई? ये तीन तरह की फूड चेन थी। ये फॉरेस्ट वाली दिखाई गई थी, ये ग्रासलैंड नॉर्मल जो होता है, और ये पॉन्ड की फूड चेन थी। ठीक है, गुड। ट्रॉफिक लेवल समझ में आया कि हर स्टेप ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल। तो जो ऑटोट्रॉफ, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हैं,
उसके बाद जो कंज्यूमर हो गए आपके प्राइम हेट्रोट्रॉप्स, जो कंज्यूमर्स है उन्हें हमने डिवाइड किया है, तो हर्बीवोर्स उसमें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे आ गए। और फिर उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल बन गए, और जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो टॉप या फिर फोर्थ लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल को फॉर्म करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखिए। अब बात सिर्फ इतनी छोटी सी फूड वेब से तो संभलेगी नहीं, ये तो एक छोटे से हमने कुछ आपको छोटे छोटे से ग्रासलैंड इकोसिस्टम या पॉन्ड इकोसिस्टम भी दिखा दिया, लेकिन ये सब बहुत बड़ा है। इनमें बहुत सारी फूड चेन्स चलती हैं, जो बहुत सारी फूड चेन्स चलती हैं, पूरी फूड वेब्स चलती हैं, मतलब जाल, वेब मतलब जाला होता है, तो पूरा चलता है। तो वो पूरा कई सारी फूड चेन्स को मिला के बनाए तो फूड वेब्स बन जाता है। इसमें क्या है, this series or organism taking part at various biotic level form a food chain। हर बायोटिक लेवल पे अलग अलग जो सीरीज जा रही है उनको पूरा मिला एक फूड चेन बनी। और फिर हमने वेब बताया आपको, तो सो ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल, ये आपको बता दिया मैंने। तो ऑटोट्रॉफ और द प्रोड्यूसर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले सनलाइट को फिक्स किया ताकि फोटोसिंथेसिस करें। तो उन्होंने सोलर एनर्जी को फिक्स कर लिया, और हेट्रोट्रॉप्स सनलाइट कहाँ पे गई, अल्टीमेटली प्रोड्यूसर यानी कि आपके ऑटोट्रॉफ के पास गई। और फिर वो हर्बीवोर्स ये सब क्या आने लगे, ये हेट्रोट्रॉप्स थे, तो ये हेट्रोट्रॉप्स के पास चली गई। फिर हेट्रोट्रॉप्स को कार्निवोर ने खाया, कार्निवोर को भी टॉप कार्निवोर ने खाया, बात सारी एक ही है, सेम सी है। So they fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers. Then the herbivore or the primary consumer come at the second level, then small carnivore or the secondary consumer at the third level, and large carnivore or the tertiary consumer forms the fourth trophic level. अब बात देखो यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर ये कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के, यहाँ पे जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सनलाइट को फिक्स किया। तो सनलाइट को कितना फिक्स कर लेते हैं, ये हार्डली 1% सनलाइट फिक्स कर पाते हैं। अब जो 1% सनलाइट इन्होंने फिक्स करी, वो सनलाइट तो 1% थी, लेकिन इन्होंने जो बनाया इनका तो पूरा 100% हम इनका देखेंगे ना। अब इनके 100% में से क्या क्या करेंगे, ये अपना भी तो कुछ इनके सिस्टम चलेगा प्रोड्यूसर का, इनका रिप्रोडक्शन होगा, इनमें भी कुछ ना कुछ होगा, इनका रिप्रोडक्शन, और ये खुद भी कुछ खाएंगे, कुछ फूड अपने लिए बनाएंगे। तो इस तरह से ये जो ये 100% इनका बना, उसमें से सिर्फ जो है हर्बीवोर तक इनका सिर्फ 10% पहुंच पाया, इस 100% में का सिर्फ 10%। अब जो इनका 10% पहुंच पाया, अब उन्होंने अपना 100% बनाया, उसमें से ये भी सिर्फ 10% देते हैं। तो जो मास फ्लो ऑफ एनर्जी है वो क्या कहती है, वो देखते हैं अभी हम। ये कहते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, दे कैप्चर अबाउट 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. So when these green plants are eaten by primary consumer, a great deal of energy is lost as heat in the environment. And heat कैसे बनती है, digestive heat, respiratory heat. So some amount goes into digestion and doing work, and the rest gone towards growth and reproduction. तो सिर्फ एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड जो उन्होंने खाया, उसका सिर्फ 10% फूड टर्न इनटू इन ओन बॉडी, अपनी बॉडी पे सिर्फ वो 10% लगा पाए। एंड में अब जो अपनी बॉडी पे लगाएंगे वो 10%, वही अगले लेवल ऑफ कंज्यूमर के लिए अवेलेबल होगा। अब वो जो 10% था वो
हम एक एवरेज वैल्यू की तरह से लेते हैं एज एन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब ये तो जो चीज है उसको कोई ह्यूमन बीइंग या एनिमल ना कह के उसको हम एक ऑर्गेनिक मैटर की तरह से हम वी विल कॉल दैट। तो वो जो 10% है can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer, जो मैंने अभी आपको बताया। Since so little energy is available for the next level of consumer, इसी वजह से जो फूड चेन्स होती हैं वो ज्यादातर 4 स्टेप पे ही फिनिश हो जाती हैं। जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप्स। So loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after for profit level। क्यों फिनिश हो जाती है? क्योंकि अल्टीमेटली इतना कम होती जा रही है। वो 1% जो था उसका 100%, फिर उसका 10%, फिर अब ये 100% बना दो उसका 10%। तो ये 1% इनिशियल 1% था उसके तो कुछ पॉइंट्स में ऊपर पहुंच पा रही है बात, तो वो इतनी कम हो जा रही है कि उनसे क्या निकलेगा। तो इसीलिए हम प्रॉफिट लेवल्स जनरली 3 to 4 स्टेज में फिनिश करते हैं। सो देयर आर जनरली अ ग्रेट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट द लोअर प्रॉफिट लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। छोटी चीजें जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए या ग्रीन ग्रासेस हो गए ये सबसे ज्यादा नंबर में होंगी। जितना ज्यादा अपने इकोसिस्टम में जो लोअर लेवल पे है छोटी चीजें वो सबसे ज्यादा नंबर में आएंगी। तो अगर अभी आपको नहीं पढ़ाया गया है ये चीज, ये तो ये जैसे हो गया जैसे ये पिरामिड बना के दिखाया गया था, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। बेसिकली बेटा ये एक पिरामिड ऑफ नंबर था। अगर पिरामिड की बात करें तो ये पिरामिड ऑफ नंबर है। सबसे ज्यादा नंबर देखो प्रोड्यूसर के हैं, फिर उसके बाद कंज्यूमर का नंबर इससे कम होगा, फिर सेकेंडरी और कम, और फिर टर्शियरी और कम। तो ये जो पिरामिड दिखाया गया है ये पिरामिड ऑफ नंबर है। और वहीं पे अगर हम मान लो पिरामिड ऑफ मास बनाएंगे, पिरामिड ऑफ मास कैसा हो जाएगा? बेचारे जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो होंगे तो नंबर में ज्यादा, लेकिन उनका वेट तो सबसे कम होगा ना। और जो टर्शियरी कंज्यूमर है वो भले नंबर में कम थे लेकिन उनका बॉडी वेट ज्यादा है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें, ये पढ़ा है आपने पिरामिड्स आपकी बुक में? तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करते हैं कृष्णा, तो जो सबसे ऊपर का होगा उसका मास ज्यादा होगा। लेकिन इस पिरामिड को आप इन्वर्ट, ये जो पिरामिड ऑफ नंबर था वो एक अपराइट पिरामिड था। और जो पिरामिड ऑफ बायोमास है जो मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, ये आपके प्रोड्यूसर हो गए और ये 4th लेवल की, जैसे आप देख लो ये 1st लेवल, 2nd, 3rd, सेम यही चीज रखो बस इन्वर्टेड है। तो ये अपराइट था और ये इन्वर्टेड है, ये याद रखो, ये भी पूछ लिया जाए। तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास है वो एक इन्वर्टेड पिरामिड है। क्लियर टू यू कृष्णा? वेरी गुड। चल अब हमारी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज है वो कैसे हमारे एनवायरमेंट पे इफेक्ट डालती हैं। आपने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ लिया होगा कि हम पोल्यूशन कर रहे हैं, हम ग्रीन प्लांट्स काट दे रहे हैं। तो पोल्यूशन का एक रीजन ये भी है कि कटिंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स, उससे क्या होता है कि CO2 बढ़ गया है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है ना। और सॉइल इरोजन जो अभी देखा, सॉइल इरोजन भी जब प्लांट्स की जड़ें जो होती है वो बांध के रखती सॉइल को, तो वो हट जाने की वजह से भी वाटर या इस तरह की चीजें आती हैं तो सॉइल बहती है, तो सॉइल इरोजन भी होता है। बहरहाल अभी जो आपके इस चैप्टर का फोकस है यानी हाँ वो किस चीज पर है, वो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर पे है और बायो मैग्निफिकेशन, बायो डिग्रेडेशन, इन चीजों पर है।
तो जल्दी से वो देख लेते हैं। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन लेयर आपकी O3 होती है। ऑक्सीजन क्या होता है? O2 होता है। अब O2 में अगर एक और O मिलाओ तब जाके ओजोन बनेगी। तो जो हमारा अपर एटमॉस्फेयर है, ये क्या है? अपर एटमॉस्फेयर क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर है। ये ओजोन लेयर जो आपकी गुड ओजोन लेयर है वो अपर एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। ठीक है। अब नीचे क्या चल रहा है भाई? नीचे हम तो खूब एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहे हैं और उसी में कुछ पल्यूटेंट्स बोलते हैं बेटा, जिस चीज से पल्यूशन हो उसे कहते हैं पल्यूटेंट। ठीक है। ये क्या होते हैं? पल्यूशन कॉजिंग एजेंट। कि अब इनमें पल्यूटेंट में भी अगर आगे बढ़ो, जब अपने नीट पे जाओगे आप, तो कुछ होते हैं प्राइमरी पल्यूटेंट, प्राइमरी पल्यूटेंट, और कुछ होते हैं सेकेंडरी पल्यूटेंट। ठीक है। तो अभी जिस स्ट्रेटोस्फेयर में हम जाने की बात कर रहे हैं, नीचे स्ट्रेटोस्फेयर जो ऊपर है, जो गुड ओजोन लेयर है ना, ये तो गुड हो गई। यहाँ पर इस ओजोन लेयर का कॉम्बिनेशन है O3, 3 ऑक्सीजन के एटम्स इसमें लगे हैं, तो एक O3 एक ओजोन लेयर बन रही है। क्लियर? फिर क्या हुआ? ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है। नीचे का जो हमारा लोअर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे हम पॉल्यूशन कर रहे हैं और कुछ प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को रिलीज कर रहे हैं। वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स, जैसे कि NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड वाली गैसेस हो गई, या ये CFC। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये हुआ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अच्छा भाई, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है CFC। थोड़ा सा इतना पढ़ लो तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा। थोड़ा और पढ़ लोगी तो शायद तुम्हारे नीट में भी काम आ जाए आगे जाके, थोड़ा सा और, क्या पता तुम्हारी बुक में पढ़ाया गया हो। तो ये जो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होती है बेटा, जब ये, अब क्या हुआ, ये गैसेस है, ये क्लोरो वर्ड मतलब इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये गैस ऊपर गई। अच्छा, ऊपर क्या है हमारा? सन है ना? सन की लाइट आ रही है, उससे निकल रही है यूवी रेज। ठीक। अब उससे जो यूवी रेज निकल रही है, अब वो इस CFC पे टकराई और ये यूवी रेज से CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिएक्ट होके भाई क्लोरीन रिलीज हो गया। ठीक। क्लोरीन रिप्लेस होने से ये जो ऑक्सीजन के साथ O3 बना हुआ था, यहाँ पर ये आ गई। इसने क्या करा? अटैक कर दिया और ये O2 और O को अलग करा दिया। और ये O2 और O जब अलग हुआ तो और भी कुछ मेटल्स जा रहे हैं, कुछ और नाइट्रोजन, कुछ और, तो इस O की जगह पे N आ सकता है, या कुछ और भी इस तरह की चीज कुछ और आ सकती है। तो ये जो ओजोन का स्ट्रक्चर था वो बिगड़ गया। इसीलिए जो आपने एंटार्क्टिका का ओजोन होल सुना होगा, वो इसीलिए है कि यहाँ पर जो इतनी गैसेस हैं, वहां पे जाके एक बहुत बड़ा सा होल नजर आने लगा है एंटार्क्टिका के ऊपर, कि वहां डिप्लीशन मतलब इतनी पतली हो गई है ओजोन लेयर वहां की, इतना डिप्लीट कर गई है। अच्छा, इन टर्न कभी एक क्वेश्चन शायद आपके पढ़ाया गया नहीं, आई डोंट नो, या आपके स्कूल में क्या पढ़ाया गया। इन टर्न अब जो इस फॉर्म में ओजोन रह गई, वो ट्रोपोस्फेयर पे नीचे लेवल पे आ जाएगी, और जब ये रह गई, ओजोन का फॉर्म बन गया, ये नहीं O3 नहीं, जब ये फॉर्म आ गया, वो जब ट्रोपोस्फेयर पे आई, जब वो ट्रोपोस्फेयर पे आई नीचे के लेवल पे, जो अबाउट 100 इस टाइप से किलोमीटर की हाइट पे, और ट्रोपोस्फेयर अबाउट, एज पर एज आई रिमेम्बर, 10 to 15 समथिंग किलोमीटर हाइट पे है हमारी अर्थ से ट्रोपोस्फेयर। तो जब नीचे के लेवल पे आई, तब वहां पे इस फॉर्म ऑफ ओजोन ने भी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करना शुरू कर दिया।
जहां पर वो इतनी जरूरी होती है ओजोन हमारे लिए, जब वो स्ट्रेटोस्फीयर में है तो हमारे लिए बून है, लेकिन यहाँ पर ये उल्टी हमारे लिए हैजार्डस बन जा रही है जब उसके साथ में कुछ और चीजें बॉन्ड कर जा रही हैं। समझ में आ गया डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर? यू गॉट इट? ऊपर से तो नहीं गुजरा? यू लाइक इट और नॉट? बोलो बेटा, समझ में आया? फिर से बताओ। गुड, वेरी गुड। आगे की चीज देख लो, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दो टर्म लिखे हैं यहाँ पे मैंने, बायोडिग्रेडेशन और बायोमैग्निफिकेशन। बात तो हम लोग पोल्यूशन की ही कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेशन क्या होता है? सपोज करो तुमने तुमने खाई हरी सब्जी, तुमने खाया फ्लैश, तुमने इन सब तरह की चीजें खाई जो कि नेचुरल थी। फिर जो बची कुछ हमने वेस्टेज करी, कुछ और भी जो एनिमल डाई हो गए वो चला गया, उन सब के ऊपर किसका एक्शन होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, कुछ फंजाई का, इन सब चीजों का एक्शन होता रहता है। तो वो चीजें अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में चेंज हो जाती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म्स में होने का मतलब, सपोज करो कि जो फ्लैश खाया वो प्रोटीन का बना था है, अब जब उनके ऊपर बैक्टीरियल एक्शन हुआ तो वो अपने स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स में चेंज हो गए, ये इनका सिंपलर फॉर्म हो गया, है ना? तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म से वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ये चीज हो गई बायोमैग्निफिकेशन। अब भाई आगे की कहानी क्या हुई? सॉरी, ये चीज हो गई बायोडिग्रेडेशन। आगे की कहानी जो है वो बायोमैग्निफिकेशन की है। इसमें क्या हुआ? अब हमने क्या करा? क्रॉप्स ग्रो करी, और हम कर रहे हैं भाई, हमें फार्मिंग करनी है, हमने खूब सारी क्रॉप ग्रो करी, और क्रॉप के ऊपर कि हमारी बड़े अच्छे हमारे पेस्ट ना लगे, इंसेक्ट्स ना लगे, हमने एक लेके जेट पंप लिया और उसके ऊपर पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, दे दनादन स्प्रे। अब क्या हुआ? इस पूरी क्रॉप पे ही पेस्टिसाइड का स्प्रे आ गया। अब जब हमें खाने को आया, हमारे पास बैंगन आया, ब्रिंजल, हमारे पास एप्पल आया, हमारे पास कोई भी इस तरह के फूड आए, फ्रूट्स आए, वेजिटेबल्स आई, हमने उन्हें बढ़िया वॉश किया और खा लिया। लेकिन हमें नहीं पता था कि उसकी स्किन के अंदर भी तो कितना कुछ एब्जॉर्ब हो चुका है, सारी चीजें वॉशिंग से नहीं जाती हैं। तो फिर हमने खा लिया उसे। या कुछ ऐसी चीजें होंगी, जैसे पानी में स्प्रे करते हैं हम मॉस्किटोज के लिए, वहां पर क्या है? लावाज है, फ्रॉग्स हैं, जैसे हमने फूड चेन देखी थी अभी, फिशेस भी खा सकती हैं, और अल्टीमेटली उन फिश को फिर हम खा लेंगे। तो इस तरह से जो ये ऐसे हो रहा है, जो डिग्रेड नहीं हो रही है चीजें, जब उन्हें स्टेप बाय स्टेप जो फूड चेन में फैल जा रही है, उस प्रोसेस को कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। यू गॉट माय पॉइंट बेटा? बच्चे तो टॉपिक यहीं तक था आपका। ये चैप्टर अवर एनवायरनमेंट इज कंप्लीटेड। इसमें अगर कोई पॉइंट या कुछ एनीथिंग एनी डाउट यू हैव, देन यू कैन जस्ट क्विकली आस्क मी। वेरी गुड। अभी ये चैप्टर आज तक की क्लास तो हो गई। अभी इसके बाद भी अगर आपको किसी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है, एक चैप्टर शायद आपका रह जा रहा है, तो चाहे आप जोलजी मैम की चाहे मेरी, किसी की भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन जस्ट कॉल चंचल मैम बिफोर योर एग्जाम, और अपने लिए आप एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा सकती हैं। आई गेस हार्डली 1 क्लास चाहिए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फ्रॉम माय साइड एवर एनवायरनमेंट तक आपका कंप्लीट है। एक था शायद कुछ चैप्टर
सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, वो आपने खुद से पढ़ा है। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उस चैप्टर में कुछ समझाने के लिए है नहीं। फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब, उसकी क्लास आप चाहते हो? अगर आप चाहते हो तो उसकी भी क्लास लग जाएगी, या आप सेल्फ स्टडी कर लोगे। सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स की क्लास बोलो, टाइप कर लो आराम से, कोई बात नहीं। बताओ क्या क्लास चाहिए? ठीक है, तो चंचल मैम से बात करके बिफोर योर प्री बोर्ड्स, आई थिंक दैट चैप्टर इज डिलीटेड। बेटा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स चैप्टर तो पढ़ाया ही नहीं गया अभी तक क्या आपको? तुम्हें उसकी क्लास चाहिए होगी, तो वो तुम संजय मैम से, मतलब वो क्लास तो होगी, आपके रूटीन में है ही, लेकिन ऐसे जैसे आप बोल रहे हो ना कि आपका एग्जाम है, तो अगर पहले चाहिए होगी तो आप एक बार कॉल करके अपनी क्लास लगवा लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, और नहीं तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो हम उसमें वो चीज पढ़ा देंगे, और आपकी बायोलॉजी फ्रॉम माय एंड कंप्लीट हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो क्लास फिनिश की जाए। वेरी गुड, एग्जाम्स में अच्छा करिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिएगा। डू वेल इन एग्जाम, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।